Red Academy, dear students. So today we'll discuss your social study. This is for standard 7. Okay, and today we'll discuss on equality. This is your chapter 1 of civics. Okay, so let's start. So first question is, in a democracy, why is universal adult franchise important? So answer, universal adult franchise is important in democracy. As first point, it is based on the principle of equality. तो इक्वालिटी मीन्स सारे जो यहाँ पे लोग रहते हैं इंडिया में, सारे के सारे लोगों का समान अधिकार है, जीने का हक सबको है. सो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. So second point, it means that all adult, those who are 18 and above, citizens have the equal rights to vote. तो जो मतलब कि 18 ईयर्स से बड़े हैं, एभव है, जिनका एज एडल्ट उनको माना जाता है, तो वही लोग वोट देने के लिए काबिल है, वो लोग वही लोग ही वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं और उनका नेता को वो खुद चुन सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट, इट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. तो ये जो होता है कि ये गरीब है या धनी है या ये कौन सी कम्युनिटी से आता है या आती है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे. तो सारे के सारे 18 ईयर्स के एभव है, जो बच्चे लड़के या जो आदमी जिनका एज 18 ईयर से आगे है, बड़ा है, तो वो लोग का अगर धनी श्रेणी में आता है या गरीब श्रेणी से आते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबको समान अधिकार दिया जाता है वोट करने के लिए. ओके, सो देन फोर्थ पॉइंट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए. मतलब कि अगर सारे के सारे लोग को हम यहाँ पे बांध के नहीं रखेंगे तो हमारा भारत बिखर जाएगा, ऐसे भिन्नता में खराब हो जाएगा सोसाइटी और कल्चर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. So reread the box on Article 15 and state 2 ways in which this article address inequality. तो देखेंगे आंसर. Article 15 in democracy of the constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. So Article 15 में क्या है? The Constitution prohibits discrimination on grounds of religions, race, caste, sex or place of birth. So two ways in which this article address inequality. दो कारण. First is, it suggests states not to discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. The next point is, no citizen shall be subject to any disability, liability, restriction on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. So next question number 3, in what ways was Om Prakash Valmiki's experience similar to that of the Ansaris? So answer is, in the following ways Om Prakash Valmiki's experience was similar to that of the Ansaris. So first is, both of them discriminate by the society on the basis of their caste or religion. Then second point, dignity and self-respect of both of them get violated. Third, both suffered from
अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो ये दो वेज था जो एक्सपीरियंस उन्होंने करा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, उनका एक्सपीरियंस गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ऑल पर्सन्स सारे लोग इक्वल हैं लॉ से पहले, और वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। तो आप क्यों सोचते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का जो रूल है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलेंगे आंसर को। द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ means that everyone will be given justice before law by treating them equal. From the president of the country to the common people, all are equal in front of law. तो मतलब कि सारे के सारे राजनेता, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सारे के सारे इक्वल है, और साधारण लोग, जनता जो है, सारे के सारे कोर्ट के सामने इक्वल है, लॉ के सामने इक्वल है। So it is important in a democracy because a democracy suggests that no one should be treated on equal basis because of their wealth, caste, color, religion, gender, etc. So democracy suggests that no one should be treated on equal basis because their wealth, caste. तो कोई मतलब कि जो रहते हैं यहाँ पे, जो जनता रहते हैं, कोई कास्ट या कलर या रिलीजन या जेंडर, इसमें कोई अलग किसी से भी नहीं है, सबको समान अधिकार मिलेगा। सो सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो ensure that no one will be given more preference for the same crime. Next, the provide the people equal opportunity to defend themselves in public court irrespective of their socio-economic position. It also reflects the true nature of a democracy. Then you can see here one picture. So 5 number. So the government of India passed the Disabilities Act in 1995. This law states that person with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream school. This law also states that all public places including buildings, school, etc. should be accessible and provided with ramps. Ramps means मतलब कि जो एक्ट 1995 में बना था कि सारे स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ पे भी है जो डिसेबिलिटी, जो क्या बोलते हो आप हिंदी में इसको, दिव्यांग, तो ये जो लोगों के लिए मतलब कि जो ये तो स्टेयर में ये सब तो जा नहीं पाएंगे, इनका जो पहिया है, जो मतलब कि जो पहिया है, ये तो आ नहीं पाएंगे। तो सबका मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि लैडर के साइड में ऐसा रहता है, मतलब कि रैंप जैसा रहता है कि ये लोग आराम से ऊपर जा सकें और ऊपर से नीचे आ सके, मतलब कि अपना पहिए के ज़रिए। तो ये पिक्चर आप लोगों ने देख लिया। बात नेक्स्ट पढ़ते हैं। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। डू यू थिंक द अबव लॉ इज़ बीइंग implemented in this case? What needs to be done to make the building more accessible for him? How would his being carried down the stair affect his dignity as well as his safety? तो जो यहाँ पे जो लड़का और जो बच्चा है उसको दो सिक्योरिटी आप लोग देख रहे हो, ये दो सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं, उसका जो चेयर को लेकर उसको उठा के नीचे लेके आ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा करना ज़रूरी है सारे जगह पर?
आपको क्या लगता है? तो आंसर में जाएंगे। सो नो, आई डोंट थिंक द एबव लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। सो ये सही नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त उसको उठा के लेके आएंगे और फिर उठा के लेके जाएंगे। ये जो ये से करने, ये मतलब कि हमें दिखता तो है सही है, बट मान के चलो ये लड़के के ऊपर क्या गुजरता होगा। मतलब कि एक तो तीन यहाँ पे तीनों लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं और मतलब कि बिना मतलब कि उसको लग रहा होगा कि बिना मतलब कि मुझे ये लोग हेल्प कर रहे हैं, उनका भी दूसरा कुछ काम होगा। ये खुद को इन्फीरियर मानता होगा कि उसको इन्फीरियर फील होता होगा। समझ रहे हो? आप उसके जगह जाकर सोचो कि कैसा लगेगा कोई, कि आपको ऐसे उठा के लेके जाएंगे फिर उठा के लेके आएंगे सारे लोगों के सामने। अगर यहाँ पर रैम्स रहता कि या कुछ रास्ता रहता कि सीधा जाने आने की, भाई मैं खुद काम करूँगा, किसी के पास झुकूँगा नहीं, तो मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तो आप दिव्यांग होने से भी आपको एक अच्छा फील महसूस होता है नहीं? तो आंसर देखेंगे। So, according to the Disabilities Act, all public places, including buildings, school, etc., should be accessible and provided with ramps, which is not done in this case. Therefore, the buildings should be provided with ramps to make it accessible for the persons with disabilities. Also, persons with disabilities have equal rights, and that the government should make possible their full participation in society, but here the dignity and self respect of the person is hurt as someone is showing sympathy and extending their helping hands. The boy may feel pity or inferior in this case of being helped by other only due to disabilities. It also affects the safety of the person as he may slip due to invalence or carelessness. तो यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक। सो आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ मतलब कि सुविधा मिली होगी। आपको अगर अच्छा लगा होगा दिस ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।